नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 4 माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 10। लेसन का नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर, हिंदी ट्रांसलेट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 9 दशहरा पाठ को पढ़ाया था, उसका हिंदी ट्रांसलेट, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 10 हेल्थ एंड हाइजीन। Scene 1. In a government primary school, students are studying in the classroom. Soon, pleasant smell of cooked meals from the kitchen reached the classroom. Some students start looking out of the window and begin to feel hungry and wait for the recess bell. Rakhi, aha, what a nice smell coming from the kitchen. I feel so hungry. Tina, whispering, I too feel very hungry. The smell makes my mouth watered. Rakhi, let's first quickly finish our classwork and then enjoy the delicious food during the recess. Soon the recess bell ring, all the children rush for food. Raju and Sonu are making noise and elbowing each other. Teacher, pointing to Raju and Sonu, come here. Sonu, yes sir. Teacher, why are you elbowing each other? Sonu, sir, I am not elbowing him. Raju is elbowing me. Raju, sir, I did not nothing. He is telling a lie. Teacher, all right, now stop fighting. Go and wash your hands before eating your food. Sonu, why wash our hand again, sir? We have washed our hands already in the morning. Teacher, it is very strange. Do not you know that we must wash our hand every time before we eat anything? Sonu, sir, we are not the only ones. Even Rakhi, Mohit, Chinky have not washed their hands. Teacher blows the whistle and calls all children to assemble in a circle. Teacher, do you know why I have called you here? I have come to know that most of you start eating your lunch before washing your hands. You should know that this habit will make you fall sick. When you eat with dirty hands, you carry some kind of germs inside your body. Student, sir, is this the only way to keep ourselves healthy? Teacher smiling, no, there are many other do's and does not while we eat. I will tell you some of them. These are: always eat well cooked food, wash your hands properly before and after taking meals, chew your food properly, don't take food more than what you can eat, always use clean utensils, do not leave any food in your plate. Student, thank you sir, we will follow these. Teacher smiling, you are welcome. Now you go and your meals peacefully. All children quick up to wash their hands. Scene 2. Scene at Sonu's house. It is dinner time. Sonu is washing his hands. His mother is calling him for dinner. Mother, surprising. Sonu, what are you doing? Sonu, Mummy, I am washing my hands. Mother, why are you doing this? You have never done this before. Sonu, Mummy, today our teacher told us that we should wash our hands before meals. He told us that if we eat with dirty hands, we carry some kind of germs inside our body and can fall sick easily. Mother, fondling Sonu. Okay, I am really happy that you have learned about healthy habits. I really appreciate your teacher. Mother, serve the dinner. New words. वर्ड मीनिंग प्लीजेंट माने नाइस, अच्छा. वर्शिपिंग स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली फुसफुसाते हुए. डिलीशियस रियलाइजिंग यानी स्वादिष्ट. एल्बोइंग पनिश्ड विद एल्बो कोहनी मारकर रास्ता बनाते हुए. असेंबल गैदर टुगेदर इकट्ठा होना. स्पॉइल स्कैटर यानी बिखेरना. क्विक एक लाइन, कतार पंक्ति. जर्म्स बैक्टीरिया दैट केज डिसीजियस यानी जीवाणु. एफर्ट्स अटेम्प्ट प्रयत्न करना या प्रयास करना. अब हम इस पाठ की हिंदी पढ़ेंगे।
एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। जल्दी ही रसोई से पके हुए भोजन की सुगंध कक्षा में पहुंचती है। कुछ विद्यार्थी खिड़की से बाहर देखने लगते हैं और उन्हें भूख लगने लगती है। वे छुट्टी की घंटी का इंतजार करने लगते हैं। राखी, आह, रसोई से कितनी खुशबू अच्छी आ रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है। टीना फुसफुसाते हुए, मुझे भी भूख लगी है। इसकी खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। राखी, आइए सबसे पहले हम अपना कक्षा कार्य जल्दी से समाप्त करें और फिर अवकाश के दौरान स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें। जल्दी ही छुट्टी की घंटी बजती है। सभी बच्चे भोजन के लिए दौड़ पड़ते हैं। राजू और सोनू शोर मचा रहे हैं और एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं। अध्यापक राजू और सोनू की ओर इशारा करते हुए, राजू और सोनू इधर आओ। अंत में जयश्री, हाँ जी, चूना लगाना। तुम एक दूसरे को कोहनी क्यों मार रहे हो? सर, मैं उसे कोहनी नहीं मार रहा हूँ, राजू मुझे कोहनी मार रहा है। राजू, सर मैंने कुछ नहीं किया, वह झूठ बोल रहा है। अध्यापक, ठीक है, अब लड़ाई बंद करो, जाओ और खाना खाने से पहले हाथ धो लो। फिर से हाथ क्यों धोना है सर? हमने सुबह ही हाथ धो लिए थे। यह बहुत अजीब है। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें कुछ भी खाने से पहले हर बार अपने हाथ धोने चाहिए? सर, हम अकेले नहीं हैं। राखी, मोहित, चिंकी ने भी हाथ नहीं धोए हैं। शिक्षक सीटी बजाता है और सभी बच्चों का एक घेरा बनाकर इकट्ठा होने के लिए कहता है। टीचर, क्या आप जानते हैं कि आपको यहाँ मैंने क्यों बुलाया है? मुझे पता चला कि आप में से ज़्यादातर लोग हाथ धोने से पहले ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह आदत आपको बीमार कर देगी। जब आप गंदे हाथों से खाते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर कुछ तरह के कीटाणु ले जाते हैं। विद्यार्थियों, क्या यही अपने आप को स्वस्थ रखने का एकमात्र तरीका है? टीचर मुस्कुराते हुए, नहीं, खाने के दौरान हमें और भी बहुत सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। मैं आपको उनमें से कुछ ये बताऊंगा। हमेशा अच्छी तरह पका हुआ खाना खाना चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में अपने हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। अपना भोजन ठीक से चबा कर खाएं। जितना आप खा सकते हैं उससे अधिक भोजन ना लें। हमेशा साफ बर्तनों का प्रयोग करें। अपनी प्लेट में कोई भी खाना न छोड़ें। छात्र, धन्यवाद सर, हम इनका पालन करेंगे। बच्चे, टीचर मुस्कुराते हुए, आपका स्वागत है, अब आप शांति से जाकर खाना खाइए। सभी बच्चे हाथ धोने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। दृश्य 2, सोनू के घर का दृश्य। खाने का समय हो गया है। सोनू हाथ धो रहा है। उसकी माँ उसे खाने के लिए बुला रही है। माँ आश्चर्य से, सोनू तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं हाथ धो रहा हूँ। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। सोनू, मम्मी, हमारी टीचर ने बताया कि हमें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के कीटाणु आ जाते हैं और हम आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। माँ सोनू को दुलारते हुए, ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने स्वस्थ आदतों के बारे में सीख लिया है। मैं वास्तव में तुम्हारे शिक्षक की सराहना करती हूँ। माँ खाना परोसती। वोकैबुलरी, कंप्लीट द पैसेज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। Comb, toothpaste, soap, towel, foam, oil, toothbrush. I wake up early in the morning. I brush my teeth with toothbrush and toothpaste. Then I take my bath by applying soap on my body. I always use a clean towel to soak my body. After this, apply some oil in my hair and brush with a comb. Then I wear my school uniform and get ready for school. Follow up. Prepare a chart of डू एंड डू नॉट फॉर क्लीन लाइन्स इन लाइफ। तो सबसे पहले हम जो करने वाली हैं लाइनें उन्हें करेंगे। डू, वॉश हैंड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। 2, वियर क्लीन क्लॉथ्स एवरी टाइम। 3, यूज़ फ्रेश वाटर फॉर बाथिंग। अब डोंट, जो नहीं करना चाहिए वो है डोंट यूज़ डर्टी हैंड फ्रॉम फॉर ईटिंग। डोंट यूज़ डर्टी क्लॉथ्स। डोंट यूज़ स्ट्रेन्ड वाटर। गो पॉन्ड फॉर यूज़। अब हम इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हेन शुड वी वेक अप? ए, अर्ली इन द मॉर्निंग, बी, लेट इन नाइट, सी, एट नून, डी, इन इवनिंग। इसका सही आंसर है ए, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन 2, बाय विच ऑब्जेक्ट डू वी ब्रश आवर टीथ? इसका ए, विद स्पून, बी, विद फिंगर, बी, विद टूथब्रश, डी, विद क्लॉथ। इसका सही आंसर है बी, विद टूथब्रश। Question 3, we should take a bath a alternate days, B, daily, C, in a week, D, in a month. इसका सही आंसर है बी, डेली।
Question 4. Why should we use soap for take a bath? A for our beauty, B for frequency of soap, C for hygienic of our skin, D for smartness. इसका सही आंसर है C. Question 5. What makes Tina mouth watered? A sweets, B खीर, B smell, D पकौड़ा. इसका सही आंसर है B smell. Question 6. What do Raju and Sonu do after hearing the bell? A make a noise, B sit silently, C wait for the food, D go to their home. इसका सही आंसर है A make a noise. Question 7. Who were elbowing each other? A teacher and student, B Raju and Sonu, C Tina and Rakhi, D none of these. इसका सही आंसर है B Raju and Sonu. Question 8. Who blows the whistle? A Sonu, B मोनू, सी राजू, डी टीचर. इसका सही आंसर है डी टीचर. क्वेश्चन 9. What habits make the student sick? A washing of hands before meal, B brushing of teeth before meal, C not washing of hands before meal, D all of these. इसका सही आंसर है C. क्वेश्चन 10. What does carry germs in our body? B brush, C soap, D dirty hand, D spoon. इसका सही आंसर है बी डर्टी हैंड्स. तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है. अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 11 सेविंग ट्रीज पार्ट को पढ़ाऊँगी. उसका हिंदी ट्रांसलेट, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी. आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.